Good evening, everyone. I trust you have had a remarkable week, immersing yourselves in the wealth of knowledge shared during the enlightening journey of TechXcelerate 2.0. As we culminate this experience with our grand finale, we delve into the world of DevOps, a domain that serves as the backbone of modern software development and IT operations. In the words of Steve Jobs, innovation distinguishes between a leader and a follower. And in the ever evolving tech landscape, DevOps stands as a catalyst for innovation, enabling organizations to lead the way in delivering cutting edge solutions. DevOps isn't merely a set of practices, it's a cultural shift fostering collaboration, efficiency, and innovation. Now, without further delay, let's move on to our today's session where I, Diksha Sharma, will be serving as your host for today. And I welcome you back to Tech Accelerate 2.0. I'm honored to introduce our distinguished speaker, a true luminary in the field of DevOps, Mr. Sarthak Jain. Currently serving as the head of communities at ID8 NXT, Sarthak has been a pivotal force in fostering collaboration and innovation. Noteworthy roles include Head of Communities at Reskill, Organizer at CNC of Dehradun, and founder of Dot Questionmark, showcasing his exceptional leadership. His diverse expertise spans contributions to Red Hat, internships at GitHub and Zabbia, and the presidency at Agman. Join me in extending a warm welcome to Sarthak Jain as he shares profound insights from the core of DevOps with us tonight. Welcome, Sarthak. Hello everyone. Thank you. Thanks for the matlab, this this intro. This means a lot. Uh, okay, without any further ado, let's start with the today's session. Okay, allow me to share my screen. Yes, right away, sir. Okay. Before starting, hello everyone. I guess uh, chat is not available. I just want to ask from the host. Chat is not available. Chat option is available for the audience or not? So we have a Q&A option here, and our peeps can We can, write their queries here. yeah, okay, no problem. If we can enable the chat option, we can just say hi to everyone. If you can enable or no issue. Matlab, it's up to you. I guess QA is not working well over Meet. That is my experience. है ना? If you can just enable the chat option so that everyone can answer and have an interactive session. So, hi everyone, we are going to talk about DevOps today. What is DevOps? How you can see your career in DevOps, how you can learn DevOps, what are the benefits of DevOps, and why industry like Microsoft, Google, AWS, uh, startups like Swiggy, Zomato, Paytm are using DevOps in their day-to-day culture. Today we are going to see some of the best practices in industry. Today we are going to see the DevOps practice which are in the industry and which you heard whenever you are doing the software development and whenever you are going through this process. So today we'll discuss some of the practices like continuous integration, continuous delivery, microservices, which is quite an interesting and the trending topic. Just allow me a second. Okay, yeah, sorry. Okay, and we are also going to talk about infrastructure as a code. We are also going to talk about monitoring, login, communication, and collaboration. So without any further ado, let's start this session. Okay. Uh, so I just want to ask from the audience, are you guys are comfortable in Hindi and English both? Um, just say hi.
मतलब just say yes or no in the chat, guys. The organizer, I guess, audience are not able to open the chat. QA में आंसर नहीं कर पा रहे हैं. Okay, yes. Okay. Okay, I hope my screen is visible. Host, can you confirm that? Anushka? Yes, sir. Uh, yeah. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So today we are going to talk about a bit about DevOps, what DevOps is. Just wanted to know how many of you know this term. Let me put something. Just wanted to know how many of you know about this term DevOps. Anyone? Whichever you prefer. It's comfortable in both Hindi, English. ठीक है. ठीक है जी. So when we talk about DevOps, तो दिमाग में आता है कि DevOps is a technology because domain like AI ML हम पढ़ते हैं तो we see that it's a tech stack. Okay, it's a tech stack. Again, when we talk about blockchain, uh, again it's a tech stack. ये भी एक tech stack होता है, ये भी एक technology है. We talk about big data. Big data एक tech stack है या क्या है big data? Anyone? What is big data over here? What is big data over here? ओके तो बिग डेटा एक प्रॉब्लम है ना अगेन जिसके ऊपर एक पूरी टेक बिल्ड हुई वी यूज टू वर्क ऑन बिग डेटा प्रॉब्लम्स एंड बहुत बहुत ज्यादा वाइडली यूज प्लेटफॉर्म है मतलब प्रॉब्लम है जिसको हमने एक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करा है बिग डेटा को देन व्हेन वी टॉक अबाउट एआई हो गई ब्लॉकचेन हो गई देन वी टॉक अबाउट डेवऑप्स तो डेवऑप्स एक टेक स्टैक है नो डेवऑप्स इज नॉट अ टेक्नोलॉजी इट्स नॉट अ टेक स्टैक इट्स अ माइथोलॉजी और अ फिलोसफी ठीक है तो व्हाट डेवऑप्स इज इट्स अ कल्चर जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं ऑन अ डे टू डे लाइफ है ना बिफोर स्टार्टिंग मतलब डेवऑप्स तो बिफोर डेवऑप्स होता क्या था लेट मी टॉक अबाउट दैट इंडस्ट्री सिनेरियो समझते हैं इंडस्ट्री में देयर आर टू टीम्स है ना देयर आर टू टीम्स व्हिच आर वर्किंग साइमल्टेनियसली वन टीम इज दिस डेवलपर टीम है ना एंड अनदर टीम इज ऑपरेशनल टीम ठीक है व्हाट डेवलपर टीम डू basically developer team develop the product plan the product and do the unit testing करते हैं develop करते हैं product they develop the product and they plan the product ठीक है and then what operational team do they do the rigorous testing ठीक है they get the requirement from the customer suppose आप एक customer हो you want to build a product they get the requirement from the customer they release this code मतलब they deploy this code they release this code for the uh, for the users ठीक है लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप है ना पूरा आज का सेशन विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप बिकॉज आई गेस एवरीवन इज फेमिलियर विद व्हाट्सएप ठीक है तो लेट अस सपोज व्हाट्सएप है हमारा एंड वी वांट टू डेवलप अ ऐप लाइक व्हाट्सएप और हमें व्हाट्सएप पे डेवलप करना है तो व्हाट विल डू इज विल गो टू अ कंपनी नेम इज एक्स वाई जी पे जाएंगे ये जो एक्स वाई जी कंपनी होगी इसमें जो है ना एक्सवाईजी कंपनी पे जाएंगे तो एक्सवाईजी से बोलेंगे आई वांट टू डेवलप ऐप लाइक व्हाट्सएप और आई वांट टू डेवलप माय ओन व्हाट्सएप तो एक्सवाईजी कंपनी का कहेगी दे विल बिल्ड सम आर्किटेक्चर they build some architecture for you they build some user flow diagram है ना they'll ask for your requirements what exactly you want है ना what all features you want they'll collect the feature and then go to their development team and ask them कि hey development team we have this requirement can we build that development team will say yes we can build them okay development team will plan accordingly they'll decide they'll make a complete प्रोजेक्ट शीट और अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट शीट क्या होती है वेयर यू डिसाइड वेयर टू डिफाइन जैसे एक प्रोडक्ट है व्हाट्सएप है ना व्हाट्सएप में हमारे सपोज 6 फीचर्स है हमारे पास व्हाट्सएप में वी हैव 6 फीचर्स इन व्हाट्सएप
एक फीचर हो गया हमारा मैसेज का, एक फीचर हो गया हमारा, ठीक है, हमारा स्टेटस का, एक फीचर हो गया हमारा प्रोफाइल का, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने का, प्रोफाइल अपडेट करने का, ठीक है, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल का। ये 6 फीचर्स व्हाट्सएप से हमें बिल्ड करवाने हैं। तो व्हाट इट विल डू, ये सारे फीचर्स उठाएंगे, प्लस इसकी यूआई यूएक्स हो गई, ठीक है, बेसिक यूआई यूएक्स डिजाइनिंग हो गई और यूएक्स यूएक्स बिल्डिंग हो गई। तो व्हाट इट विल डू, दिस कंपनी विल डू, दिस डेवलपर्स विल प्लान देयर स्प्रिंट्स। व्हाट इज स्प्रिंट्स? सपोज दिस इज अ प्रोडक्ट व्हाट्सएप, ये एक पूरा प्रोडक्ट है, दिस इज माई प्रोडक्ट, दिस इज माई कंप्लीट प्रोडक्ट, ये मेरा पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप इज माई कंप्लीट प्रोडक्ट, है ना, एंड आई वांट टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट। तो इट दे विल डिवाइड इनटू द सेवरल स्प्रिंट्स की 15 डेज में हम मैसेज बनाएंगे, 25 डेज में हम स्टेटस वाला फीचर बनाएंगे, देन दिस फीचर एंड देन दिस फीचर, एंड इन 6 मंथ ऑफ टाइम स्पेन, in 6 month of time span we are completing with this whole app and testing. Operational team से कि ठीक है, ओके डन है, दे गो टू द कस्टमर एंड देन कस्टमर को उन्होंने प्रोडक्ट बता दिया कि 6 महीने लगेंगे, they'll give that cost, customer ने कहा okay let's start building this, and they build this whole product. Okay, just allow me a second guys, तब तक please drop your questions. Yeah, I guess, okay. हम्म, ठीक है, तो अभी मेरे को मेरे ऑपरेशंस टीम ने बोला कि लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है यार, है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब डेवलपर टीम पहले क्या करती थी, लेट्स ये सिनेरियो पूरा, अगर अगर ये डेवऑप्स प्रिंसिपल ना, कल्चर ना फॉलो हो, उससे पहले व्हाट वुड हैपन इज, डेवलपर टीम 6 मंथ्स में ये पूरा प्लेटफॉर्म बना देंगी, देन दे स्टार्ट द टेस्टिंग, देन दे टेस्ट द प्रोडक्ट एंड गिव इट टू द ऑपरेशन टीम। ऑपरेशंस टीम फिर इसमें लोड टेस्टिंग हो गया, रिग्रेस टेस्टिंग करेगी, दे ऑल्सो डू द टेस्टिंग, देन ये यूजर को दे देगी टेस्ट करने के लिए। यूजर को टेस्ट करने के बाद यूजर ने बोला कि ओके एवरीथिंग इज फाइन नाउ, दे डिप्लॉय दिस फीचर, ठीक है। दिस दिस इज द ओल्ड सिनेरियो होता था जो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम जो यहाँ पे रही। सपोज सपोज आई डेवलप दिस मैसेजिंग फीचर, और इस मैसेजिंग में पहले जो यूज होता था वो होता था ब्लू टिक, जो कस्टमर ने मुझे स्टार्टिंग में बोला था ब्लू टिक। बट थोड़े समय बाद कस्टमर सेड कि आई डोंट वांट ब्लू टिक, आई डोंट वांट रेड टिक, आई वांट ब्लू टिक। तो हुआ क्या, आई नीड टू, आफ्टर दिस 6 मंथ ऑफ टाइम स्पेन, आई नीड टू गो अगेन, चेंज दिस कोड एंड दोबारा मेरे को बिल्ड करके दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा, दोबारा डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो व्हाट वुड हैपन इज टाइम बढ़ गया, ठीक है, बिकॉज कस्टमर का फीडबैक कब आया, 6 महीने बाद। मे बी ये हो सकता है छोटा सा चेंज हो, लेकिन अगर कस्टमर ने मेजर चेंज दे दिया, सपोज कस्टमर ने कहा यूआई अच्छी नहीं लग रही है अभी, वी नीड टू चेंज द यूआई, यूआई विल अगेन टेक 15-20 मोर डेज टू बिल्ड दिस, एंड इसमें किसका लॉस होगा, बोथ बोथ डिसाइड, दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन XYZ, इसका भी लॉस हुआ, कस्टमर का भी लॉस हुआ, कस्टमर लेट हो गया, एंड दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दिस 15-20 डेज। अगर पे भी मिलता है, बट दे नीड टू चेंज द होल ऐप, जिसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दैट इज द the problem, the conflict between developer and operation. Developer team बोलती थी कि go first and ask for the requirement, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग बिल्ड करेंगे। ऑपरेशन टीम बोलती थी अभी हमारे पास लास्ट मिनट रिक्वायरमेंट है, तो यू नीड टू बिल्ड बिकॉज दे आर पेइंग आर दे आर पेइंग आर बिल्स, तो वी नीड टू बिल्ड वॉट एवर दे वॉन्ट। तो कस्टमर को मना कर नहीं सकते, यूजर को मना कर नहीं सकते कि दे विल नॉट बिल्ड what exactly they want, they need to build, तो ये प्रॉब्लम होती थी। बट when DevOps come into the market, what DevOps principle said कि यार आपको WhatsApp बनाना है, cool, आप WhatsApp ये बनाओ, बट हम कैसे बनाएंगे WhatsApp, ये हम देखते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो 6 मंथ्स है, ठीक है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंट्स में डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज स्प्रिंट्स, एक प्रोडक्ट है, सपोज आपके पास एक केक है, एंड इफ यू डिवाइड इनटू द स्मॉलर पीसेस, है ना,
दैट इज नोन एज स्प्रिंट। ये तो स्प्रिंट 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4 5 स्मॉल स्मॉल स्प्रिंट्स में डिवाइड कर दिया कि ये स्प्रिंट 15 डेज में कंप्लीट होगी, ये 10 डेज में होगी, ये 15 डेज में होगी, ये 15 डेज, ये 10 डेज, 15 डेज, ऐसे कुछ विल डिवाइड द स्प्रिंट। दिस इज समथिंग दिस इज समथिंग नोन एज स्प्रिंट प्लानिंग, जहाँ पे डेवलपर विल से कि आई वांट, इफ यू वांट टू डेवलप दैट प्रोफाइल फीचर, तो आई नीड 6 days ऑफ टाइम। इट मीन्स ये जो स्प्रिंट चलेगी 6 दिन चलेगी। अगर मेरे को स्टेटस वाला फीचर बनाना है, आई नीड 12 days, तो वो स्प्रिंट 12 दिन चलेगी। In this sprint, what they will do, they will integrate this part which is known as continuous feedback. What is continuous feedback? कि प्रोडक्ट बनता जा रहा है एंड वी आर आस्किंग, मतलब फॉर फ्रॉम फीडबैक फ्रॉम दी कस्टमर्स। मैं यूजर के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, प्रोफाइल सेक्शन इज गुड। अपने कस्टमर के पास जाऊंगा, प्रोफाइल, वो कहेगा यस प्रोफाइल इज गुड। डू यू सी दैट स्टेटस में कुछ अपडेट होना है? नो। ठीक है। तो जो भी करंट सिनेरियो होगा, लाइक मैंने अपना ऐप पे, सपोज मैंने व्हाट्सएप, मैंने बोला कस्ट मैंने एक व्हाट्सएप की यूआई बना दी। ठीक है। नाउ दिस यूआई इज डिप्लॉयड ऑन अ टेस्ट सर्वर, और टेस्ट सर्वर को मेरा कंज्यूमर देख सकता है। तो नाउ कंज्यूमर कैन सी दैट सैट सर्वर, और वो बोलेगा कि अभी कुछ चेंजेस हैं। ठीक है। इफ चेंजेस आर देयर देन ओके, डेवलपर विल चेंज, इफ नॉट दिस विल पास एंड दे विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्प्रिंट। ऐसी तीसरी फोटो करते करते दे विल एंड अप विल, मतलब इन अ स्प्रिंट जहाँ पे दे परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस कौन कौन से? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। इट मींस व्हाट? जब हम अपने प्रोडक्ट को, लाइक वी हैव अ प्रोडक्ट, अब यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिसेस है जो डेवऑप्स की जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। continuous integration in our software development is a practice where we used to regularly merge the code into a central repository। गिटहब हम सभी ने चलाया हुआ, ठीक है। हमने गिटहब पे रेपोजिटरी बना रखी है। ठीक है। गिटहब पे एक रेपोजिटरी बना रखी है। इस रेपोजिटरी पे इस व्हाट्सएप का कोड है। ठीक है। सपोज अभी यूआई का हमने इसमें कोड डाल रखा है, तो हमें एक यूआई दिखती है। ठीक है। अब हमने यूआई पे एक बटन बनाया। हमारी ये लोकल होस्ट है, लोकल कॉपी है। ठीक है। और ये हमारी गिटहब है, रेपो, गिटहब रेपो ऑफ आवर प्रोजेक्ट। हमने यहाँ से एक कोड पुश करा, जहाँ पे हमने ये बटन कोड करा है। तो बटन कोड हुआ। ठीक है। एक पाइपलाइन चली और ये डिप्लॉय हो गया। आप ऐसा समझो अभी डिप्लॉय हो गया। डिप्लॉय होके ये बटन इस कोड पे आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमें यूआई पे अब बटन शो होने लगा, तो दिस इज नोन एज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। और जब ये डिप्लॉय हो जाता है तो कंटिन्यूसली डिप्लॉय, मतलब द मोमेंट वी पुश द कोड, इट डिप्लॉय ऑन अ सर्वर, इट नोज एज कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है। एंड इसके बीच में ना बहुत सारी चीजें होती है, लाइक जब ये लोकल कॉपी होगी तो कोई भी ऐप ना ऐसे नहीं होता, पहले वो बिल्ड होता है, देन वो आगे जाता है ना। बिल्ड होके आगे जाता है, तो ऐप की, हर एक ऐप की, हर एक वेब ऐप की एक बिल्ड बनती है। तो दैट इज नोन एज, तो उस बिल्ड को बनाना, ठीक है, सारे टेस्ट केसेस रन करना कि टेस्टिंग में बटन फट तो नहीं रहा है, टेस्ट फट तो नहीं रहा है, कोड फट तो नहीं रहा है। ठीक है। एंड रिलीज के लिए तैयार करने को हम बोलते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी। डिलीवरी बोलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाना, डिप्लॉय होने तक की ये जो साइकिल होती है, इसको हम बोलते हैं डिलीवरी। तो जब ये कंटिन्यूस वे में होती है, मतलब इन दैट मोमेंट मैंने एक चेंज कमिट करा और वो डिप्लॉय हो गया, इट इज नोन एज कंटिन्यूस डिलीवरी। तो अभी हमने ना तीन वर्ड पढ़े, सी आई, सी डी एंड अगेन अ सी डी। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, continuous deployment, continuous delivery। continuous integration is something, जब भी हम कोड पुश करते हैं, कोड करते हैं, है ना, ऑन अ रन टाइम हम कोड करके पुश कर देते हैं, है ना। द मोमेंट वी पुश इज नोन एज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। और वो कंटिन्यूसली इंटीग्रेट होता रहता है ओल्डर वाले कोड से, ओल्डर वाले रेपो से। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट इज समथिंग, जब वो कोड हमने पुश कर दिया, वो कोड फिर रिलीज में चले गया, फिर टेस्टिंग हो गई, पहले टेस्ट हो गया, बिल्ड हो गया, रिलीज में चले गया, उसके बाद डिप्लॉय हो गया, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी। और लास्ट में जब वो डिप्लॉय होता है ना, ऑन अ मूवमेंट ऑफ फ्यू क्लिक्स, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सर प्रॉब्लम क्या है?
अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट द नीड ऑफ द डेवऑप्स, व्हाई वी नीड डेवऑप्स, ठीक है। डेवऑप्स की नीड की वही हम एक केस स्टडी से और जानते हैं। हाँ, आप में से कौन कौन है जिन्होंने हॉटस्टार की स्टोरी सुनी है? किन किन को पता है कि किन ने हॉटस्टार यूज करा है? हाउ मेनी ऑफ यू यूज हॉटस्टार? हॉटस्टार या जियो, आई थिंक जियो स्पोर्ट्स करके है ना, जहाँ पे हम आईपीएल देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? How you automate this? We'll show you how we can automate this. um okay, there are 7 6 hands जो अभी रेज हुआ। हॉटस्टार में, हॉटस्टार की एक स्टोरी है यार। हॉटस्टार में आप ये मान के चलो हॉटस्टार है। हॉटस्टार में जब एक नॉर्मल प्लेयर खेलता है, कोई भी नॉर्मल प्लेयर खेलता है, तो 50 60 लाख की भीड़ आती है, ठीक है। बट जब धोनी आता है, माही भाई आते हैं, तो यही भीड़ 3 करोड़ हो जाती है, ठीक है ना। किस किसने ऐसा फील करा है, देखा है कि जब पिच पे धोनी होता है या कोहली होता है, तो ये भीड़ डबल ट्रिपल हो जाती है, ऑलमोस्ट करोड़ में हो जाती है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन इन दिस सिनेरियो? अब आप सोचो, एज एन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, हॉटस्टार किसी ना किसी सर्वर पे चल रहा होगा, ठीक है। हॉटस्टार का जो ये एप्लीकेशन है, किसी ना किसी सर्वर पे चल रहा होगा। ये सर्वर का ना एक लोड होता होगा। सपोज एक सर्वर है, वो 1001 के व्यूअर्स का लोड ले सकती है, ठीक है। अगर 3 करोड़ यूजर्स का लोड लेना है, सपोज, है ना, या 1 लाख यूजर्स का लोड ले सकती है एक सर्वर। 1 लाख यूजर का लोड ले सकती है, 100 के यूजर्स का लोड एक सर्वर ले सकता है। तो अगर मेरे को 10 लाख यूजर का लोड लेना है, तो हाउ मेनी सर्वर वी वांट? 10 सर्वर्स। वी वांट टू हैव द लोड ऑफ 1 करोड़ यूजर्स, देन वी वांट 100 सर्वर्स। अब आप ये बात बताओ मुझे कि जब नॉर्मल प्लेयर खेल रहा होगा, तो 50 60 लाख व्यूअरशिप आ रही होगी। हाँ, the architecture of the application is the most important point in the whole in the whole game of DevOps. Yes, but at the same point of time, how that architecture is defined with the principle of DevOps, also with the tools we are using in DevOps, that is also plays an important role in this system, because architecture हम पहले भी बनाते थे, but to set up that culture, it is very important. अभी हम ये सर्वर की बात कर रहे थे। एक सर्वर 1 लाख व्यूअर्स का लोड ले सकता है ना। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर माही भाई आएंगे तो 3 करोड़ यूजर्स का होगा। तो दो चीजें है, या तो हॉटस्टार ये करे कि 5 CR यूजर्स के लिए या 4 CR यूजर्स के लिए सर्वर डेडिकेट करके छोड़ दे, बना के छोड़ दे, कि अगर लोड ऊपर नीचे होता है तो देखा जाएगा। बट अगर किसी दिन माही भाई आए या विराट कोहली आया, और किसी दिन माही भाई नहीं आया, विराट कोहली आया, और ये 5 CR हो गया, तो क्या होगा? तो फिर हॉटस्टार बंद हो जाएगा, राइट। बट नहीं, होता क्या है कि सपोज ये मेरा एक सर्वर है। अब ये देखना, अभी ये मेरा एक सर्वर है जो 100 के का लोड ले सकता है ना। मैं इसके पीछे, मैं इसको कंटेनराइज करता हूँ। कंटेनराइज क्या, डेवऑप्स का एक टूल होता है यार, जिसको हम कहते हैं डॉकर। वो क्या करता है, किसी भी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करने में हेल्प करता है। तो मैं अभी आपसे बोल रहा था ना माइक्रो सर्विस, तो दे बिल्ड अ माइक्रो सर्विसेज, एंड उसके थ्रू वी कैन कंटेनराइज एनी एप्लीकेशन। तो हम इसको कंटेनराइज कर देंगे। हम इसको कंटेनराइज कर देंगे, ठीक है। एक कंटेनर में डाल देंगे इसको, पूरी सर्वर्स को, पूरी सर्वर की रैक को एक कंटेनर में डालेंगे। अब होगा क्या, अब आप देखना, ये कंटेनराइज करा हमने विद द हेल्प ऑफ डॉकर, ठीक है। और इस डॉकर को मैनेज कौन करता है? इस डॉकर को मैनेज करता है K8s, क्यूबरनीट्स। आप अभी टेंशन मत लो यार, ये क्यूबरनीट्स, डॉकर, ये सब टूल है। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डेवऑप्स कल्चर, तो इसमें डेवऑप्स की कुछ टूल्स है ना। तो कंटेनर को, व्हेन वी कंटेनराइज विद द हेल्प ऑफ डॉकर, है ना, एंड these container is managed by K8s. So what we do is we give the command to the अपना Kubernetes को, कि whenever सर्वर लोड 90% पे आ जाएगा, एक सर्वर और इनिशिएट कर देना। सपोज 1 लाख यूजर है अभी, और जब 90,000 यूजर्स होंगे, हमारे 90 के यूजर्स होंगे,
है ना, तो एक नया सर्वर बना देना और 1 लाख यूजर का, तो इट मीन्स व्हाट कि कंटेनर क्यूबरनेटिस क्या करेगा, ये मेरा 1 लाख सर्वर का कंटेनर पहले से चल रहा है, जैसे ही इस पे 90K हुए, ये एक सर्वर और बना देगा 100K का, अपलोड इस पे आना चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा 2 लाख यूजर्स हो गए, 3 लाख यूजर्स हुए, फिर इस पे बना देगा। ठीक है, एंड दिस कैन मतलब एंड विद अ शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम स्पेन, हो सकता है 30 सेकंड में बन जाए, हो सकता है 60 सेकंड में बन जाए, डिपेंडिंग कि सर्वर की लोड कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है, दैट इज समथिंग द पावर ऑफ डेवऑप्स वी हैव। ठीक है, तो हॉटस्टार की हमने एक छोटी सी एनालिस करी है, बहुत छोटा है, इसमें बहुत बहुत बड़ा आर्किटेक्चर को डिफाइंड है हॉटस्टार का, विच वी कैन स्टडी। या you just need to add a node balancer, node नहीं load balancer होता है, हाँ, there is node balancer और a load balancer we can say। अब ये भी ना, लोड बैलेंसर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लोड बैलेंसर व्हेन वी टॉक अबाउट लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर अभी थोड़ा सा बहुत आगे बढ़ गए हैं, है ना, ये लोड बैलेंसर का ही काम होता है, बट लोड बैलेंसर को वी नीड टू सेट अप नोड बैलेंसर को ऑन आर के क्यूबरनेटिस क्लस्टर। ठीक है, मैं आपको एक जस्ट एनालॉजी दी है, अगर हम इसमें डीप डाइव जाएंगे तो बहुत सारा है। तो देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, देयर आर वेरियस टर्मिनोलॉजीज, there are various things which is used to build a CI/CD pipeline, है ना, but that does not the vertical scaling of the input now, that can be done by the ये वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट व्हेन वी टॉक अबाउट दी, देखो यार वही है, ये सारे कॉन्सेप्ट व्हेन वी टॉक अबाउट, तो दिस कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डेवऑप्स ओनली, मतलब आप वहीं से करोगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू दी पावर, टेलिंग यू द पावर ऑफ दीज tools, the tools which DevOps have. No, just giving the overview of these tools. Okay, what is the best alternative? Okay, not alternative tool. Today we'll talk about the what are the tools for CI/CD pipeline. Alternative मुझे नहीं पता आप कौन से tool आपको पता है जिसके मैं alternate बताऊं। If you talk about GitHub, अगर GitHub का कोई alternate है तो वो बिग बकेट कर है। ठीक है, CI/CD के लिए गिटहब का ही एक टूल आता है विच इज नोन एज गिटहब एक्शन। बहुत पुराना प्रोडक्ट है, जो एक्शन से पहले था, दैट इज जेनकिंस। या तो इंडस्ट्री में जेनकिंस गिटहब एक्शन दोनों यूज होते हैं अभी के समय पे। ठीक है, तो यार एक Excuse आगे, me, sir. हाँ जी, Sir, sorry for interrupting, but नो I would प्रॉब्लम। like to request you to switch on your mic as we have to keep the screenshots for college records. स्विच ऑन है, माइक माइक तो स्विच ऑन है ना। Sorry, switch on your camera. हाँ, कैमरा, इफ यू डोंट माइंड, मतलब मैं नहीं करूँ तो कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट आस्किंग। Sir, as per your convenience. हाँ, एक्चुअली एक्चुअली मेरे घर पे शादी है, तो मैं मिडिल में पढ़ा रहा हूँ, है ना, आसपास में लोग Okay, चुप sir, बैठे, no problem. आई डोंट वांट देम टू डिस्टर्ब मोर, है ना, सॉरी। ठीक है जी, यार ये एक डेवऑप्स मॉडल है, जो कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे AWS की या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म की, तो वहां पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अभी जहाँ मैं जो मैंने स्टेजेस आपको बताई ना, वही स्टेजेस में लिखी हुई है। ठीक है, दिस इज दिस इज समथिंग बिल्ड सीरीज, जहाँ पे वी स्टार्ट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, है ना। इस स्टेज से ना एक पहले की स्टेज आती है विच इज नोन एज प्लान सीरीज, प्लान स्टेज। ये प्लान स्टेज करते क्या है, कस्टमर मेरे पास आता है, कस्टमर बोलता है हाय सार्थक, हमें ना यार एक ऐप बनाना है, वेब ऐप बनाना है, तो लेट्स प्लान दिस वेब ऐप। तो कस्टमर कम विद सम पॉइंट्स, सजेशंस एंड सम ड्रीम, जो एक कंपनी को लेकर आता है कि हाँ मुझे ये ऐप बनाना है। वी टेक दैट ड्रीम, वी टेक दैट प्लान, एंड उसको हम टेक के थ्रू डिजाइन करते हैं, देन वी स्टार्ट बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट। वंस वी स्टार्ट बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको हम रिलीज करते हैं। जो ये रिलीज प्रोडक्ट है, कस्टमर कैन सी दिस,
कैन सी दिस रिलीज, उसके बाद यहाँ पे दे कैन गिव द अपडेट, दे कैन गिव द सजेशन फीडबैक, एंड ये वापस हमारे उसी स्टेज पे आ सकता है। तो मॉनिटर वाली स्टेज है ना, मॉनिटर वाली स्टेज पे इट ही और शी कैन सी दैट प्रोडक्ट की कितना हो गया है, कितना रह गया है, व्हाट आर दी फीचर, व्हाट वी हैव, मतलब जो हमने फीचर डेवलप कर रहे हैं वो कैसे लगे कैसे नहीं। तो एवरीथिंग वी कैन सी एट दैट दिस स्टेज, मॉनिटर वाली स्टेज पे। तो मॉनिटर करने के लिए भी देयर आर वेरियस ऐप जो होता है, जैसे ग्राफाना हो गया, प्रॉमथस हो गया, है ना। देन वी अगेन गो टू दैट प्लानिंग स्टेज। तो दिस इज द फीडबैक लूप। फीडबैक लूप इज कि जहां पे कस्टमर इज सेइंग अगेन एंड अगेन, कस्टमर इज गिविंग द फीडबैक एंड वी आर improving our product or improving the development according to that। ठीक है, फिर एक नया प्लान आता है कि इसमें एक नया फीचर लगना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये एक साइकिल बन जाती है। इफ यू कैन सी दिस, दिस इज अ साइकिल, नेवर एंडिंग साइकिल। तो डेवॉप्स में ना एक बड़ा फेमस डायग्राम है, अगर आप सब अ, देखते होंगे, आपने सुना होगा, आपने देखा बहुत बार होगा। लेट मी शो यू दैट डायग्राम। तो ये वाला डायग्राम हम सब देख रहे होंगे। तो दिस इज द डायग्राम which lots of us seen majorly। दिस इज अ प्लान स्टेज, ये दिस इज अ स्टेज वन। यहाँ पे प्लान करते हैं कैसे बनाना है, क्या बनाना है। दिस इज अ प्लान टू, स्टेज टू, जहाँ पे हम बोलते हैं कि अब यहाँ पे वील स्टार्ट द कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट के लिए यहाँ पे हम कुछ टूल्स यूज करते हैं, है ना। टूल्स अब मैं बताता हूँ आपको। लेट्स जंप टू द टूल्स। इसके साइड में ही टूल्स वाला मैं एक पोस्टर प्लेस कर देता हूँ। जस्ट अलाउ मी अ सेकंड, मैं एक बार देखता हूँ डायग्राम कौन सा है। हाँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सीइंग कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है, उसमें कौन कौन से हम टूल्स यूज कर सकते हैं। तो डेवॉप्स में ना टूल से ज्यादा इज इम्पोर्टेंट हम जो माइथोलॉजी है। तो आपने थोड़ा बहुत समझ तो लिया होगा होता क्या है डेवॉप्स, कल्चर है क्या डेवॉप्स, बट उसको हम थोड़ा और ज्यादा समझेंगे। बट उससे पहले एक बार बता देता हूँ कि डेवॉप्स काम कैसे करता है। सपोज ये प्लान वन है मेरा, दिस इज द स्टेज वन विच इज प्लानिंग। मैं आया, मैंने एक पेन पेपर उठाया, प्लानिंग करनी चालू करी। अगर मेरे को प्लानिंग करनी है तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ बोर्ड्स। एटलासियन का एक सॉफ्टवेयर आता है जो प्लानिंग स्टेज के लिए हमें यूजफुल होता है, जिसको हम कहते हैं जीरा। तो आप सभी लोगों ने जीरा जीरा जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में, टूल के बारे में सुना होगा। सिमिलरली देर इज अ टूल लाइक स्लैक जहाँ पे हम अपना प्लानिंग वगैरह वर्क डिस्कस करते हैं। देन वी हैव गिटहब फॉर वर्जन कंट्रोलिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो भी हम कोडिंग करते हैं, वी यूज टू कोड एंड देन पुश टू आवर सेंट्रल रिपोजिटरी, जिससे और भी कोडर्स जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, दे कैन सी दैट कोड एंड दे कैन कोड इन दैट वे कि एक साथ सब कोड कर सके, है ना, इन अ कोलैबोरेशन मैनर। देन दे यूज टू बिल्ड दिस कोड। अब यार कोड ऐसे तो नहीं, मतलब देंगे आपको ना कि सपोज एक कोड करा, दे यू नीड टू पैकेट दैट कोड, दे नीड टू बिल्ड दैट कोड सो दैट अगर कोई भी यूज करे तो दे कांट चेंज द कोड, दे कांट, मतलब दे कांट डू एनीथिंग विद दैट कोड। तो एक टूल आता है ग्रेडल। तो देर इज अ टूल लाइक ग्रेडल, और यहाँ पे जेनकिंस भी आता है, एक जेनकिंस। ठीक है, ग्रेडल हो गया, ये हो गया, जेनकिंस हो गया। तो यहाँ से हम बिल्ड करते हैं। देन वी नीड टू टेस्ट द कोड। अब अगर हमने कोड कर दिया है, नाउ वी नीड टू टेस्ट द कोड। तो फॉर टेस्टिंग वी यूज सेवरल टूल्स लाइक एजोर, AWS, इन सब के पास ना अपने टेस्टिंग मैकेनिज्म होते हैं, है ना। वी कैन टेस्ट द टूल विद दैट, अपने खुद के टेस्ट केसेस लिख के, with the help of our own test cases we can test these tools। ठीक है, that is something। तो when we talk about testing part is
ठीक है, तो टेस्टिंग में भी देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ टूल्स जो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बिल्ड वाला ना, बिल्ड में एक बहुत बहुत पॉपुलर टूल है यार, अगर आप सभी ने नाम सुना होगा, 100% सुना होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डॉकर। ठीक है, डॉकर इज ऑल्सो यूज टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर, है ना। अगर आप सभी ने जब वेब डेवलपमेंट करते होंगे तो आपने एनपीएम का नाम जरूर सुना होगा, है ना। आप सभी ने विजुअल स्टूडियो को का नाम सुना होगा, विजुअल स्टूडियो कोड्स का नाम सुना होगा, आप सभी ने के का नाम सुना होगा। तो दीज ऑल कम्स अंडर द बिल्ड स्टेज, जहाँ पे हम किसी भी टूल को बिल्ड करते हैं, पैकेट करते हैं, देन वी यूज टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर, देन वी यूज टू रिलीज द सॉफ्टवेयर। अब क्या होता है, ये जो टेस्टिंग वाला फीचर होता है ना, टेस्ट से रिलीज वाली साइकिल, इसे कहते हैं हम सीआई, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ठीक है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ये वाला सर्कल है, ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेट होता चल रहा है, ठीक है। देन यहाँ से प्लान वाला जो वापस आएगा, दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस फीडबैक। हाउ दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस फीडबैक, हमने अपना सॉफ्टवेयर रिलीज करा, डिप्लॉय करा, डिप्लॉय करने में भी अब यहाँ पे जब हम रिलीज करते हैं, ठीक है, रिलीज करने के बाद जब हम डिप्लॉय करते हैं, तो देर इज थ्री टर्म्स विच यू कैन सी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, प्रोविजन, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। अब ये तीन टर्म्स का ना बहुत गहरा मतलब है। लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट infrastructure as a code. When we talk about infrastructure as a code, it's a practice where infrastructure is provisioned and managed using the code and the software. जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम देख पा रहे हैं ना, दिस इज प्रोविजन और मैनेज विद द हेल्प ऑफ अ टूल, जो हमारी वेबसाइट है, जो भी है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोविजनिंग, व्हाट इज प्रोविजनिंग, है ना। तो देर आर टू टर्म्स, एक तो हो गई हमारी प्रोविजनिंग, और हो गई हमारी, एक हो गई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आप ये मानो, सपोज आपने कोड करा, अगर आप, कैसे बताऊं आपको, सपोज आपने एक सर्वर इंस्टॉल करा, है ना, ठीक है, और सपोज आपने एक कोड करा, ठीक है। तो एच सभी ने सुना होगा, है ना, प्रोटोकॉल। तो किस प्रोटोकॉल पे कौन सा राउट खोलना है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, मे बी किसी ने सुना हो, किसी ने ना सुना हो, तो देर आर, तो जो भी उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करनी है, दैट इज समथिंग। प्रोविजनिंग इज समथिंग, सपोज मेरे पास एक मशीन है जिसमें पाइथन चल रही है, एंड आई वांट 10 more machine like python, so what I'll do, I'll use tools like ansible। एक ansible नाम का टूल आता है जिसको हम प्रोविजनिंग में यूज करते हैं, जिसको हम प्रोविजनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला ये वाला थोड़ा गलत है गाइस, ठीक है। प्रोविजनिंग में यूज करते हैं उस टूल को, ठीक है। व्हाट इज प्रोविजनिंग, whenever we need to, you know change some, not exactly the configuration, but we need to scale down and scale up the resources, like अगर मेरे को HTTPs एक HTTP सर्वर बनाने हैं, और ऐसे ऐसे 10 सर्वर चाहिए, विदाउट मेकिंग विद माय मतलब विदाउट मेकिंग वन एंड वन सर्वर बाय माई सेल्फ, वट आई डू, आई राइट अ स्क्रिप्ट, वो मैं अपने कंप्यूटर को दूंगा, एंड कंप्यूटर विल डू दैट वर्क फॉर मी। दैट स्क्रिप्ट इज रिटन बाय एनसिबल। तो आई आस्क माई एनसिबल, हाई एनसिबल, आई वांट 10 जावा मशीन्स या 10 सर्वर्स टू बी अप इन नेक्स्ट, मतलब टू बी अप। तो एनसिबल मेरे लिए वो 10 सर्वर अप कर देगा। तो और ऐसा नहीं, इंग्लिश नहीं लिखनी होती है, सॉरी, but there are certain commands which we need to give, there are certain scripts which we need to write। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रोविजनिंग एंड ऑल। जो आपको ये टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट गिटहब, तो गिटहब अपने आप में 2 दिन का टॉपिक है। देन डॉकर, जेनकिंस, तो पूरा डेवॉप्स अगर मैं आपको बताऊं, हर एक टूल अपने आप में 5-7 दिन का टॉपिक है। तो इट मीन्स अगर आपको पूरा डेवॉप्स हर एक टूल अच्छे से पढ़ना है, तो यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 3 to 4 months to know all these tools, प्लस एक CI/CD पाइपलाइन, जो ये पूरी पाइपलाइन दिख रही है ना, दिस इज नोन एज CI/CD पाइपलाइन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवरी, ओके। देन वी हैव ऑपरेशनल पार्ट, जहाँ पे हम वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन वो करते हैं। वर्चुअलाइजेशन वही आपका जो क्लाउड पे डेटा डालना है, कंटेनराइजेशन डॉकर के साथ जो हम करते हैं, छोटा हर एक
माइक्रो सर्विसेज बिल्ड करना, मॉनिटरिंग में कस्टमर कैन कम चेक द लॉग्स, सी उसका सॉफ्टवेयर कैसा चल रहा है कैसा नहीं, फेल कुछ हो रहा है तो दे कैन सी, डेवलपर कैन टीम कैन सी दैट, वो यूजर का फीडबैक ले सकते हैं इन द मॉनिटर फेज एंड देन अगेन प्लानिंग. तो दिस इज ऑल अबाउट glimpse of this. वीएम इज, हाँ वीएम तो बहुत छोटा पार्ट है यार. वीएम तो आपको कैसे बताऊं, वीएम इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. मतलब हाँ, यू कैन क्लोन द वीएम, वो तो वीएम तो बहुत छोटी चीज है यार, बहुत छोटी चीज. गिटलैब, हाँ गिटलैब इज अगेन द is one more service for continuous integration. Why it is known as KTS. Kubernetes को हम KTS भी कहते हैं. There is one more version which is K83. Kubernetes को हम KTS भी कहते हैं and K83 भी कहते हैं. So there is two version of Kubernetes, K3S and K8S. एक K0S भी है, बट मेजरली जो जो वर्जन चलते हैं वो K8S एंड K3S चलते हैं. तो आप ये मान के चलो क्यूबरनीट्स में ना देर आर के एंड देन 8 वर्ड्स, QUBERNETE. तो उसको हम, वो 8 वर्ड्स है उसको 8 लिखते हैं देन एस. तो दैट इज वाई क्यूबरनीट्स को K8S बोलते हैं. ठीक है. टेम्पलेट बन सकती है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, हाउ वुड यू रेट द फ्यूचर ऑफ डेवऑप्स इज अल्टीमेट यार. मतलब अगर आप आज के समय की बात करो, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस जेन एआई कल्चर, तो जेन एआई में ना एवरीथिंग यू वांट इन अ वेरी हाई स्पीड. यू वांट टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन अ डे और टू. मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि 2 दिन में सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. यू वांट टू डू एवरीथिंग वेरी क्विकली. तो डेवऑप्स से ज्यादा तेज या एफिशिएंट वे कुछ नहीं है इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का. So DevOps is the future. Now also DevOps is the present. Everyone is using DevOps today in their organization. अभी भी कर रहे हैं. ठीक है. तो ये बेसिक है. तो जब मुझसे लोग पूछते हैं ना वाई व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेवऑप्स, तो डेवऑप्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है उसकी स्पीड. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस डिलीवरी, बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो सर्विसेज, जहाँ पे सर्वर अप करना डाउन करना द इज इज समथिंग वी कैन डू इन अ सेकेंड्स. तो ये बहुत सही है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट रैपिड डिलीवरी, तो अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, एक प्रोडक्ट के फीचर्स डिलीवर करना बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा तेज है. इट्स रिलायबल बिकॉज यू नो व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर वांट फ्रॉम यू. है ना. यू आर मॉनिटरिंग एवरी लॉग, यू आर सीइंग एवरी प्रॉब्लम which comes to your software on a very faster pace. It means the day you develop the software, in 1 or 2 minutes you can see that उसकी build fail हुई है pass हुई है. You can see that all the test cases are pass or not, or or something like that. You can scale your model any time any day. आज you have 1 lakh of users, so you are working with a capacity and a budget of 1 lakh of users. Tomorrow if it cross 1 crore, you can scale in a in an hour the पूरा architecture. है ना. It helps you to improve your collaboration. डेवलपर ऑपरेशन टीम का कोलैबोरेशन इंक्रीज हुआ है ना. बिकॉज पहले क्या होता था, डेवलपर ऑपरेशन टीम पे डाल देता था कि आपकी गलती है, दैट इज वाई कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाई. ऑपरेशंस वाले डेवलपर पे डाल देता था कि तुमने ही गलत बनाएंगे, दैट इज वाई कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाई. इट इज मोर सिक्योर नाउअडेज ना. दैट इज वाई ऑल दिस हैपन. बिकॉज जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम बात कर रहे होते हैं पॉलिसी एज अ कोड एज वेल. है ना. जहाँ पे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना, हमारी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ कुछ पॉलिसीज इंटीग्रेट करते हैं, सो दैट हमारा ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये
सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। भी किसी का कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं नहीं, इट वाज नॉट जोकिंग, ऐसे ही था वो कि इट एस को यही बोला गया कि 1s के बीच में 8 वर्ड आते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज के इट एस। बेस्ट फ्री रिसोर्स एक यूट्यूब चैनल है, एन्ना करके। यूट्यूब चैनल पे है एक एन्ना, बताता हूँ आपको। आई गेस एन्ना ही है उसका नाम। नैना, NANA। तो शी यूज टू टीच डेवऑप्स, अच्छा डेवऑप्स पढ़ाती है बहुत से। लाइक आई कैन शेयर यू इन द चैट। कहाँ गया आपका बेस्ट रिसोर्स वाला? Perhaps, where is the best resource? You can learn from this. बाकी कहीं मत जाना, बाकी कुछ आई गेस काम का नहीं है। मतलब फ्री रिसोर्स तो यही है, बाकी इट इज गुड टू लर्न फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन। I'll tell you how you can learn. Like you want to learn Docker, तो डॉकर कैसे लर्न करोगे? लाइक I'll tell you how you can learn Docker documentation. So this is a Docker documentation. So from initial, मतलब if you're a beginner from starting Docker desktop, Docker engine, Docker build, you can start learning DevOps or this Docker thing, है ना? तो in a day you can start doing this, है ना? तो सब मिल जाएगा, व्हाट इज डॉकर, डॉकर प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू, है ना? ऑल दिस यू कैन लर्न फॉर फ्री, एंड दिस इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड रिसोर्सेज। मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं है इंटरनेट पे, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग एल्स इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम दी ऑफिशियल रिसोर्सेज। उसी तरह जैसे आपको क्लाउड लर्न करना है, तो सपोज आपको माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड लर्न करना है, तो आप क्या करते हो? माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाते हो एंड यू स्टार्ट लर्निंग, सॉरी, दी माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, है ना? तो आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाए, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड पढ़ना चालू कर दिया आपने, ठीक है। यहीं पे आपने चालू कर दिया, यहाँ पे ना डेवऑप्स के भी कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। तो अगर आप डेवऑप्स पे जाओगे तो यू विल सी डेवऑप्स की इंट्रोडक्शन टू एजोर डेवऑप्स, टू डेवऑप्स टूल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज। तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से ही मिल जाएगी, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट का अपना एक टूल होता है, जैसे जेनकिंस की डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन, जेनकिंस की अपनी यूजर डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो यू कैन कम एंड read that Jenkins documentation. You can read that how you can build pipeline, what is Jenkins pipeline, है ना? तो यू कैन लर्न एवरीथिंग। यहाँ पे ना कुछ कुछ वीडियोस भी मिल जाती है जो कि हेल्प आसान कर देती है आपका ये काम। बट ट्राई टू लर्न फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज इंटरनेट पे ना वो सारी चीज़ एक साथ मिल नहीं पाती, प्रॉब्लम आती है। हाँ, डिपेंड करता है, इफ यू वांट टू डू दैट सीसीएनए तो नेटवर्किंग का सर्टिफिकेशन है ना। सीसीएनए तो नेटवर्किंग का सर्टिफिकेशन है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू हैव 20, आई गेस 20,000 के आसपास का है, तो बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशन फॉर अ नेटवर्किंग इंजीनियर। अगर आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है, इफ यू वांट टू लर्न दिस, तो जो लर्न करो। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो क्लाउड गुरु करके एक है, वो फ्री मिलता है पढ़ने के लिए, तो वहां से पढ़ सकते हो आप ये फायरवॉल वगैरह। और अगर आपको यही पढ़नी है फायरवॉलिंग वगैरह, तो सिस्को के अपने रिसोर्सेज है, ट्रेनिंग्स है। सिस्को ट्रेनिंग्स एंड सर्टिफिकेशंस जाओगे ना आप, डालोगे तो आपको वहाँ पे सिस्को की ट्रेनिंग्स मिल जाएगी। तो आई गेस फायरवॉल का कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे भी आता है, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर, है ना? आई गेस आई एम ओपन फॉर ऑल दी क्वेश्चंस, प्लीज क्वेश्चन डाल दो मेरे को जितने भी पूछने, आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस, बिकॉज दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, आई वांट टू मेक यू लर्न मोर, बट नहीं हो पाएगा, है ना? हाउ यू टू इम्प्लीमेंट एंड, हाँ, ऑल दिस पोर्शन आर स्टूडेंट पोर्शन। यार मैंने ना सेकेंड ईयर में करा था डेवऑप्स, और मैंने थर्ड ईयर में आते आते इसको मास्टर कर लिया था। बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट सो मेनी इंटर्नशिप्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक कंपनी है रेड हैट, जिसका हम लिनक्स यूज करते हैं। तो उसके लिए आई यूज टू राइट ब्लॉग्स एंड कंट्रीब्यूट टू देयर टेक्निकल राइटिंग, एज वेल एज नॉट ओनली टेक्निकल राइटिंग बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू देयर प्रोडक्ट, जिसका नाम था एनसेबल, जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का
था, है ना। तो आई यूज टू डू दिस। तो आप आप जाके ये वाले ब्लॉग्स देख सकते हो। आई यूज टू राइट अ लॉट। तो जब मैं लिखता था तो आई यूज टू राइट अ लॉट ऑन डेवऑप साइड। तो व्हाट यू कैन गो डू, यू कैन गो एंड जस्ट सी these blogs. What are you use on Terraform going paid for this? यार उसका तो वो पार्ट है ना, अगर वो टेराफॉर्म पेड नहीं जाएगा तो कमाएगा कैसे? एंड इफ इज नॉट अर्निंग तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर देम टू बी इन द मार्केट और स्टिक इन द मार्केट? वो तो फिर मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है यार, अंडरस्टूड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आई गेस दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, एंड if you are with me connected over my LinkedIn or um, then it is good. If you're not, I'll just drop my LinkedIn link. You can get connected if you have any question regarding uh, DevOps, or let's let's uh, connect over here, है ना? Yeah, over to you, Diksha. Hello, uh, Diksha. I'm not. Am I audible to you? Hello. So can you give me the proper step to, if you want to start the DevOps? मैंने जो ब्लॉग शेयर करे है ना, तो वहाँ पे ना बहुत सारे ब्लॉग्स है वेयर यू कैन जस्ट गो एंड लर्न मोर अबाउट DevOps. पहले ना DevOps सीखो, व्हाट एग्जैक्टली द DevOps कल्चर इज। इफ यू वांट मी, मतलब इन माय कम्युनिटी आई यूज्ड टू टीच DevOps अ लॉट, है ना। तो आई एम स्टार्टिंग विद द DevOps, एक सीरीज से स्टार्ट कर रहा हूँ। इन अपकमिंग वीक, या तो फरवरी में स्टार्ट करेंगे, फरवरी मिड में। तो वी आर स्टार्टिंग विद अ डेवऑप्स सीरीज, जहाँ पे एवरी डे वी यूज टू टीच डेवऑप्स 1 या 2 घंटे के लिए। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना तो इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज है। तो स्टार्ट लर्निंग। जैसे कि पाइपलाइन है ना, पूरी पाइपलाइन है। पहले प्लानिंग हो गई, प्लानिंग को तो लर्न करने की जरूरत नहीं। बिल्ड हो गया ना, तो बिल्ड को याद करो। बिल्ड पे 2 टूल्स है। पहले आपने डेवऑप्स कल्चर समझ लिया, व्हाट इज डेवऑप्स कल्चर, देन बिल्ड पे 2 टूल्स है। गिटहब पढ़ना चालू कर दिया, गिटहब पढ़ लिया। अ, ठीक है। सॉरी, गिटहब पढ़ लिया। गिटहब पढ़ने के बाद आप जेनकिंस पे चले गए। जेनकिंस के बाद आप अपनी CI/CD पाइपलाइन वगैरह पे चले गए। ठीक है। डॉकर पढ़ लिया, ओपन स्टैक पढ़ लिया। ठीक है। जेनकिंस पढ़ लिया। देन आपने थोड़ा सा क्लाउड सीख लिया, AWS, GCP या एजोर, जो भी आपको अच्छा लगे। देन गो विद द एनसिबल फॉर, एनसिबल पढ़ा थोड़ा सा अपनी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वगैरह के लिए। उसमें भी 3 टूल होते हैं, एनसिबल, शेप, पपेट। दो तीनों में से कोई भी एक पढ़ लो। क्यूबरनीट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एंड देन मॉनिटरिंग के लिए ग्राफाना होता है। बट स्टार्ट करो पहले गिटहब से, है ना। तो दैट इज बेसिक, कि पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दैट प्रैक्टिसेस, एंड देन उसके बाद उनके टूल्स है कुछ, उन पे जम कर जाओ। ओके। कुछ और क्वेश्चंस हो तो? थैंक यू, थैंक यू सो मच पांडे जी। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू इन योर डेवऑप्स जर्नी, है ना। आई यूज्ड टू टीच टू दी कॉर्पोरेट एज वेल। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू इफ आई कैन एनी डे, है ना। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। ओ ओ ओके, द स्टेज इज ऑल योर, दीक्षा जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you, everyone. I'm confident enough that after this session, you're all geared up to embark on your DevOps journey. As we draw the curtains on this
You are not audible, I guess. Or my internet is lagging. I don't know. Diksha, if you're saying something, you are not audible to me. I think there is some network issue from Diksha's end. So No problem. basically आज TechX का last session था, and we are very glad to our audience and everyone. So all kudos to our junior council. मतलब पूरा session from day 1 till today, we all सब कुछ arrange किया है junior council ने. Everything was done by them. So kudos to them. And हम लोगों का we are having our closing ceremony of TechX tomorrow at Microsoft Office Gurgaon. So selected participants को I guess सबको मिल गया उनके. मेरे को नहीं मिला है. So you're also invited. मेरे को नहीं करा आपने इनवाइट. ऐसे नहीं आऊंगा मैं. मेरे को इनवाइट नहीं आया है. मैं ऐसे ही अरे मजाक कर रहा हूँ गाइस. एडीसी is I used to Okay. work with Azure developer community a lot. So it's a very good हाँ जी community, सर. guys. One of the biggest community in India. To go and enjoy the closing ceremony जिसको मिल गया है ना. Thank you very much. मतलब one of the best community यार. मैंने खुद बनाई है इसे zero से, तो I understand the emotion. You can understand the emotions with this community. तो yeah, one congratulations for your this 7 days, I guess 7 or 8 days boot camp, 8 right? days. 8 days. Okay, 8 days boot camp, awesome. And okay, so I hope uh, मतलब you enjoy this 8 day journey and your team is so energetic, है ना. I used to get call and messages every second day if I am getting any problem or not. So the team is very good. Thank you everyone, and hope to meet you soon in person. Uh, very soon. And yeah, bye bye. See ya. I'm glad to have you, sir. Thanks for coming. Okay, one more announcement, Abhi. I guess if a lot of you are here. So hackathon ki announcement. We have hackathon in March, and it is something big coming. Oh yes, we have a hackathon on 16th and 17th March. We'll have it in 2 rounds, round 1 and round 2. All the details will be shared on Instagram and definitely TechX group also. So you all are very much invited. Ciao, follow karo.